Now, good morning, students. I will start a new chapter which is aromatic compounds. And aromatic compounds में जो आपको syllabus में है वो compound है benzene. The structure of benzene is this is 6-membered ring. The formula of is C6H6. If you remove one hydrogen from benzene, you have this type of structure. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला है C6H5 डैश, जिसको जनरली अपन बोलते हैं फिनाइल। ये सब अपन IUPAC में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स में वी विल डिस्कस बेंजीन रिंग की रिएक्शंस, प्रिपरेशंस एंड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन। सो नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन में सबसे पहले मैंने बताया बेंजीन का फॉर्मूला इज C6H6। When you remove one hydrogen from benzene, it is known as phenyl. बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट मेंशन अंडरलाइन कीजिएगा 353 केल्विन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है 353 केल्विन। 353 केल्विन। इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन, इट इज नोन एज फिनाइल, जो अपन IUPAC नेम में डिस्कस कर चुके हैं। इन द फर्स्ट फेज यू हैव very much structures of aromatic compounds. राठी सर ने आपको aromatic compounds में हकल रूल डिस्कस किया होगा. This is 4n+2 pi rules. So all the structure which is given in this box: benzene, naphthalene, anthracene, benzene sulfonic acid, benzaldehyde, toluene, benzoic acid, pyrrole, furane, thiophene, pyridine and biphenyl. ये सब स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टर्स. वी विल डिस्कस एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिलेबस में जो एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शंस है वो है बेंजीन. तो फर्स्ट रूल इज बेंजीन कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन. Benzene contain higher percentage of carbon. Every benzene ring contain higher percentage of carbon. The benzene का formula is C6H6. It is contain higher percentage of carbon. You have C6H6. Benzene का molecular weight is 78 grams. In this benzene molecules, you have 6 atom of carbon and 6 atom of carbon का weight is 72 grams. So now percentage carbon is in the benzene is 72 by 78 into 100. Around 90% के ऊपर इसमें कार्बन है. So first characteristics of aromatic compound, it contain higher percentage of carbon. Second, thermal stability. First of all, aromatic compound is highly stable because of resonance stabilized. अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है तो स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे उतना ही कम हीट लिबरेट होगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर दीजिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड इट इज प्रोड्यूस्ड या लिबरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट, जो कि आपको जीओसी में ऑलरेडी गिवन था. नाउ थर्ड इज केमिकल बिहेवियर ऑफ बेंजीन. केमिकल बिहेवियर ऑफ बेंजीन सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बेंजीन इज ए स्ट्रक्चर विच इज 3 double bond in the ring. 3 double bond in the ring, and these 3 bonds are resonance stabilized. Due to this resonance stabilized, benzene show very very least amount of addition reaction. Benzene undergoing substitution in various steps जो मैं डिस्कस करूंगा, but it will show a very least amount of addition reaction, वो भी एक्स्ट्रा कंडीशन देने पे. नॉर्मल कंडीशन में, in normal condition benzene do not undergo
do not undergo addition reaction. Addition reaction. Today I will discuss you जिसमें बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन देगा, बट इन द हाई टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बट बेंजीन नॉर्मली एडिशन रिएक्शन नहीं देगा. बेंजीन इजीली अंडरगो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, easily undergo in the substitution reaction. Benzene easily undergo in the substitution reaction. Second thing, benzene में all the double bond are resonance stabilized. That's why benzene does not react with oxidizing agent as well as reducing agent with normal condition. Oxidizing agent as well as reducing agent के साथ बेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा. सो वी कैन से बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ अल्कलाइन KMnO4 which is known as Bayer's reagent. बेंजीन डज नॉट अंडरगो विथ अल्कलाइन KMnO4. आपको पेज नंबर 1 पे लिख करके भी दिया है, बेंजीन डज नॉट डीकलराइज. डीकलराइज का मतलब होता है कि अगर ये कंपाउंड रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कलर चेंज होगा नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल these three properties very important. प्लीज जो भी एक्स्ट्रा है यहां पर मेंशन कर दीजिएगा. हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, ड्यू टू हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन जब बेंजीन को बर्न करते हैं तो बहुत सारा फ्लेम, बहुत सारा धुआं यहां पर निकलता है, विच इज नॉन एज सूटी फ्लेम, विच इज नॉन एज सूटी फ्लेम. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, वीडियो को पॉज करके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स का अच्छे से पढ़ना है. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, these compound contain higher percentage of carbon contained than corresponding aliphatic hydrocarbon. As a result, these compound burn with sooty flame. Sooty flame का reason है because of higher content of carbon. Second, thermal stability. Benzene is exceptionally stable. Reason डाल दीजिएगा, due to resonance. Due to resonance, it is produce less amount of heat. Third, chemical behavior. Benzene do not undergo normally condition में addition reaction. Benzene undergo in substitution reaction easily, but under the certain condition benzene also undergo addition reaction. And सबसे important, benzene does not react with oxidizing agent as well as reducing agent. Oxidizing agent मतलब KMnO4, K2Cr2O7. Please mention it. So first page में वीडियो को पॉज करके फर्स्ट पेज आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा. सारे फॉर्मूलाज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आपको डिस्कस करना है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे आपको दिया है एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस. एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस. द फर्स्ट डिफरेंस इज वेरी क्लियर. एरोमेटिक कंपाउंड में यू हैव हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन. एलिफेटिक में इससे लोअर होगा. इट इज कंटेन लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन. सेकेंड, एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, while aliphatic compound reacts with oxidizing agent and reducing agent. These two properties clear. Now third, aromatic compound बर्न विथ सूटी फ्लेम, जिसका रीजन है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, जबकि यहां पर सूटी फ्लेम जनरेट नहीं होगा. डिफरेंस नंबर 4, एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज साइक्लिक होते हैं, जबकि एलिफेटिक नॉन साइक्लिक भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है. I think 4 difference is very clear. Now fifth difference, aromatic compound कौन सी रिएक्शन को प्रिफरेबली देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एरोमेटिक कंपाउंड मोर प्रिफर
एरोमेटिक कंपाउंड कुछ एडिशन भी देगा अंडर सर्टेन कंडीशन, बट सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा वाइल एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन दोनों रिएक्शन देगा. सो ऑल फाइव डिफरेंसेस क्लियर. सेकेंड थिंग, एरोमेटिक कंपाउंड में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड शुड बी रिक्वायर्ड या रेजोनेंस शुड बी रिक्वायर्ड, व्हाइल एलिफेटिक में रेजोनेंस शुड नॉट बी रिक्वायर्ड. सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे डिफरेंस अच्छे से रीड कर लो, अंडरलाइन कर लो. आई विल गिव यू अगेन छोटा सा रिकैप. एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, एलिफेटिक साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है. एरोमेटिक कंपाउंड सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा, while एलिफेटिक के लिए सूटी फ्लेम इज नॉट रिक्वायर्ड. एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक अल्केलाइन KMnO4, एसिडिक KMnO4, while एलिफेटिक उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा. नाउ एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करता है, अंडर सर्टेन कंडीशन एडिशन भी फेवर करेगा, while आपका जो एलिफेटिक है वो सब्स्टिट्यूशन एडिशन दोनों देगा. एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, while एलिफेटिक साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है. नाउ यू क्लियर ऑल द डिफरेंस नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज स्टार्ट मार्क कर दीजिएगा. 5 and 4 and 5 and 6, 4, 5, 6 डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड जनरली 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है बेंजीनॉइड, ये मैंने आपको 11th में भी एक्सप्लेन किया था. दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड. एक होता है बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड. बेंजीनॉइड जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए. बेंजीनॉइड, this compound contain at least 1 benzene ring. सो नॉन बेंजीनॉइड आपका वैसे क्लियर हो गया होगा. नॉन बेंजीनॉइड में एक भी बेंजीन रिंग नहीं होगा. नॉन बेंजीनॉइड में एक भी बेंजीन रिंग नहीं होगा. बेंजीन रिंग अगर किसी भी कंपाउंड में एक भी बेंजीन रिंग नहीं है तो वो नॉन बेंजीनॉइड होगा. आई विल गिव यू सम एग्जांपल. लाइक इफ आई विल गिव यू सपोज दिस एग्जांपल, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया. दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेफ्थलीन बेंजीनॉइड, बट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल जिसको अपन पायरोल के नाम से जानते हैं, पायरोल इज नॉन बेंजीनॉइड. पायरोल इज नॉन बेंजीनॉइड एज वेल एज पिरिडीन, इसको भी आप नॉन बेंजीनॉइड बोलोगे. pyridine is non-benzenoid because benzene ring में you have at least 6 carbon. There are 5 carbon. Is that clear, students? Benzenoid and और नॉन बेंजीनॉइड में आप एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लीजिएगा. एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड, बेंजिल्डिहाइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, सबके साथ बेंजीनॉइड है. फ्यूरेन स्ट्रक्चर आपको पता है. थायोफिन पेज नंबर 1 पे स्ट्रक्चर दिया है. pyridine is also non-benzenoid. Now पेज नंबर 2 पे नीचे दिया है एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी राठी सर ने आपके साथ डिस्कस कर लिया है. एरोमेटिसिटी अपन डिसाइड करते हैं बाय द हक्कल रूल. सो पेज नंबर 2 में नीचे आप सब कुछ पढ़ के रखा है. पेज नंबर 3 भी आपका कंप्लीट पढ़ा हुआ है. पेज नंबर 3 में आपका स्ट्रक्चर पड़ी हुई है. पेज नंबर 3 में नीचे आपको दिया है स्ट्रक्चरल. पेज नंबर 3 में नीचे आपको दिया है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन.
सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बेंजीन का स्ट्रक्चर यू हैव लाइक दिस, बट बेंजीन में डबल बॉन्ड ऑलवेज इन रेजोनेंस स्टेबलाइज, सो दे विल डीलोकलाइज ऑलवेज। तो अगर ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, तो आपके पास इसका एक और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में मैंने डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट ने देखा जिसका नाम है केक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, केक्यूल ऑब्जर्व फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग, बेंजीन में, in the benzene all carbon is sp2 hybridized, all carbon is sp2 hybridized, but alternate single double bond is there। तो पेज नंबर 3 पे केक्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया, बेंजीन में रेजोनेंस ऑब्जर्व किया। नाउ कम ऑन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आपको जैसा मैंने डायग्राम दिखाया वैसे उसने डायग्राम दिखाया आफ्टर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेज नंबर 4 पे नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन दिया है जो मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, 11th में मैंने आपको बेंजीन का ये लुईस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, सबको क्लियर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल। एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जब मैं बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहता हूं तो बेंजीन में एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट ऐसा कौन सा एक p ऑर्बिटल है जो यहां पर अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है? बिकॉज वी नो दैट व्हेन हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस you have s orbital as well as pk 3 suborbital which is px py pz। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो these 3 orbitals are occupied, this is sp2, but one pz is always unhybridized in benzene structure। so please नीचे आपको दिया है all the 6 carbon atoms in benzene is sp2 hybridized, 2 sp2 hybridized orbital of each carbon atom overlap with sp2 hybridized of adjacent carbon atom form 6cc sigma bond which are hexagonal plane। the remaining sp2 hybrid orbital each carbon atom overlap with s of a hydrogen atom to form 6ch bond। you have 6ch bond as well as 6cc bonds। each carbon atom is now left with one unhybridized p orbital, very very important, which is pz। the unhybridized p orbital form a pi bonds, sorry this is pi bonds, this is pi bonds is unhybridized, pi bond is unhybridized। so ये मेंशन करना है कि एक पाई बॉन्ड इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, फेल्स to explain its unusual stability and preference to substitution reaction over addition reaction। why benzene does not undergo an addition reaction? because benzene में you have 3 alternate double bonds। कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होगा, बोलेंगे सर आपने 11 में बताया था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें पाई बॉन्ड होता है जो आसानी से ब्रेक होते हैं और एडिशन रिएक्शन दे देना चाहिए, बट मैंने वहां पर आपको एक रेजोनेंस नाम की एक चीज नहीं बताई थी। रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी होगी और स्टेबिलिटी होगा तो कंपाउंड उतना ही कम एडिशन रिएक्शन देने की सोचेगा ना। अभी आपको जो इसमें लर्न करना है वो एक ही चीज लर्न करना है, द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल फॉर्म ए पाई बॉन्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। नाउ नीचे आपको रेजोनेंस दिया है बेंजीन का, रेजोनेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिर्फ 2-3 चीजें अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो डेटा दिया है 1.40 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन आर इक्विवेलेंट हैविंग बॉन्ड लेंथ 1.40 एंगस्ट्रॉम। ये सब प्लीज ये डेटा लर्न कर लेना, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 4 पेज में मैंने आपको बताया बेंजीन को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने देखा, केक्यूल, उसने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा।
but calcul fails to explain how benzene undergoes substitution, how benzene का स्टेबिलिटी इज मेंटेन, अनयूजुअल स्टेबिलिटी के बारे में वो नहीं बता पाया. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल डिस्कस पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 पे आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड दिया है, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं. आप सारे एग्जांपल सॉल्व करो. अगर कोई भी डाउट्स आपको दिखाई देता है तो प्लीज मुझे फटाफट फॉरवर्ड कर देना. सारे के सारे IUPAC नेमिंग आपको सॉल्व करने हैं. नाउ कम ऑन, पेज नंबर 8. यू सॉल्व ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC. इवन अगर आपको कोई भी डाउट है तो फटाफट आप कल मेरा एक जूम लेक्चर भी मैंने रखा है फॉर डाउट सॉल्विंग, आप उसमें पूछ सकते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ पेज नंबर 8 पे अपन डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, methods of preparation of benzene. मेक इट वेरी क्लियर कि बेंजीन के बहुत सारे रिएक्शन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन का फॉर्मेशन बाय एसिटाइलिन. ये मैंने आपको अल्काइन में सिखाया था, याद होगा. ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, if you have 3 moles of acetylene, आपको इसका शायद से कंडीशन भी लर्न होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयन ट्यूब, स्टूडेंट्स टेम्परेचर बोलो. रेड हॉट आयन ट्यूब टेम्परेचर इज 873 केल्विन. नाउ यू सिर्फ वन बॉन्ड. ये स्ट्रक्चर आपको अल्काइंस 11th में भी था. वहां पर अपन ने ट्राइमराइजेशन ऑफ अल्काइन से फॉर्म किया था बेंजीन. जब मैं बॉन्ड शिफ्ट करूंगा तो यहां पर CH, यू हैव डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड, यू विल गेट बेंजीन. तो फर्स्ट रिएक्शन तो आपका पढ़ा हुआ है. समटाइम्स इसको अपन पॉलीमराइजेशन भी बोल देंगे. ब्लू बुक में क्वेश्चन आएंगे, उसमें अगर ट्राइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन है तो पॉलीमराइजेशन भी राइट है, ट्राइमराइजेशन दोनों राइट है. डोंट वरी, दोनों राइट है. कंडीशन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा. रेड हॉट आयन ट्यूब इन द प्रेजेंस ऑफ 873 केल्विन. नाउ बेंजीन के प्रिपरेशन का सेकंड मेथड, मैंने आपको अल्केन में एक रिएक्शन बताया था, डीकार्बोक्सिलेशन. अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं. बेंजीन का फॉर्मेशन बाय सोडियम बेंजोएट. सबसे पहले सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होगा? यू हैव बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O Na. डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आप कौन से एजेंट यूज करते हैं? NaOH और CaO. मैंने आपको अल्केन में सिखाया था. वर्ड्स रिएक्शन के जस्ट बाद, दिस इज डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट. डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट सबसे पहले रिमूव करते हैं दिस CO2 एंड दिस CO2 रिएक्ट्स विद NaO फॉर्म Na2CO3 और ये Na, इस Na के साथ Na2CO3 बन गया. नाउ दिस हाइड्रोजन अटैच ओवर हियर, सो यू विल गेट बेंजीन. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. कंडीशन आपको याद ही है, NaOH एंड CaO का मिक्सचर. NaOH और CaO का मिक्सचर को अपन बोलते हैं सोडा लाइम मिक्सचर. NaOH और CaO के मिक्सचर को अपन बोलते हैं सोडा लाइम मिक्सचर. दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई विल गिव यू वन मोर रिएक्शन ऑफ यू. प्लीज रिएक्शन के जस्ट नीचे लिखना. यू हैव CH2 COONA. यहां पर मैंने दिया सोडा लाइम मिक्सचर, NaOH प्लस CaO का मिक्सचर. दिस मिक्सचर, दिस COONA
और Na के साथ बना लेगा Na2CO3 and now you have benzene ring plus CH3, benzene ring attached with CH3. This is known as toluene. दिस इज नॉन एज टॉल्विन. मैंने वहां पर आपको एक और लिखवाया था, सोडा लाइम मिक्सचर 1 कार्बन लेस का प्रोडक्ट बनाता है किसी भी सॉल्ट से. नाउ वीडियो को पॉज करके आप दोनों रिएक्शन एकदम अच्छे से रन कर लो. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ कम ऑन, पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पे आपको बॉक्स दिया हुआ है. पेज नंबर 9 पे आपको गिवन है बॉक्स, और बॉक्स में आपको बहुत सारी रिएक्शन दी हुई है जो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो सारी रिएक्शन आगे आपको यूज होने वाली है. सो आई विल डिस्कस ऑल ऑफ द रिएक्शंस. नाउ बॉक्स में पहला रिएक्शन है बेंजीन का रिएक्शन फ्रॉम अराइल हैलाइड. अब स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना, अराइल का मतलब होता है कोई भी एरोमेटिक्स टाइप की रिंग. अराइल, यू हैव बेंजीन रिंग, अराइल, और यहां पर हैलाइड, कोई भी हैलोजन डालती है. इट विल रिएक्ट विद 2 नेसेंट हाइड्रोजन. सबसे पहले 2 नेसेंट हाइड्रोजन आते ही आपको एक चीज का पता लग गया होगा कि डेफिनेटली यहां पर रिडक्शन होने वाला है. और जैसे रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन जब नेसेंट की फॉर्म होता है तो दिस इज हैविंग फ्री रेडिकल्स, एंड दिस फ्री रेडिकल H react with X, form HX, and 1 hydrogen is attached over here. So you will get benzene ring plus HX. Is that clear? So aryl halide के रिडक्शन से भी we will get benzene ring. Now रिएक्शन नंबर 3 में एक और रिएक्शन दिया है, ब्रोमोबेंजीन. रिएक्ट्स विथ Na, CH3CH2Br, और यहां पर दिया है ड्राई ईथर. ड्राई ईथर देते ही आपको एक रिएक्शन नाम आता होगा, एक रिएक्शन का नेम आता होगा विच इज वर्ड्स रिएक्शन. बस वर्ड्स रिएक्शन में अपन सिमेट्रिकल अल्केन बनाते थे. सिमेट्रिकल अल्केन, अगर मैं यहां पर वर्ड्स रिएक्शन टाइप करूं तो दिस Br रिएक्ट्स विद Na एंड Br, 2 NaBr निकल गया, और आपके पास बन गया बेंजीन रिंग अटैच विद CH2CH3, जिसको अपन बोलते हैं इथाइल बेंजीन. सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल अल्केन बिकॉज ऊपर तो CH2CH3 है, नीचे बेंजीन है. So this reaction is not Wurtz reaction. अगर आपने symmetrical alkane in the presence of sodium और catalyst लिया है dry ether, then you will get reaction को आप बोल सकते हो Wurtz reaction. But जब आप aromatic compound के साथ कोई भी alkyl को attach करते हो, this is like Wurtz reaction, but इसका एक name दिया है Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction. This is very very important. Wurtz-Fittig reaction. This is not a Wurtz reaction. बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. ये Wurtz reaction में we will get always symmetrical alkane. Now next reaction दिया है बेंजीन का formation by बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन का रिएक्शन फॉर्मेशन बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला है बेंजीन रिंग अटैच विथ SO3H. अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं स्टीम के साथ, स्टीम आपको पता है हाई टेम्परेचर रहेगा तभी तो स्टीम होगा. टेम्परेचर का ध्यान रखना. यहां पर अगर आपने लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन तो रॉन्ग हो जाएगा. स्टीम और हाई टेम्परेचर डिसोसिएट एंड फॉर्म H plus and OH minus. This OH minus react with this SO3H, form H2SO4, and this H add over here. So you will get benzene plus H2SO4. You will get benzene plus H2SO4. This is also very very important reaction.
नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन का फॉर्मेशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे भी आपको आने वाला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरली फॉर्मूला होता है RMgX। R होता है अल्काइल, X है हलाइड और ये मैग्नीज। सो वी कैन से CH3MgX, CH3MgBr इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो अगर मैं यहां पर ले लो फिनाइल रिंग अटैच विथ MgBr, this is also Grignard reagent because phenyl is also alkyl। R या PH, फिनाइल को PH लिखते हैं, PH MgBr, दिस इज Grignard reagent। और अगर इसका रिएक्शन मैं करा दूं CH3 CH CH3 और यहां पर ले लिया मैंने Br। सो अगर मैं इस MgBr पे चार्ज देखूं तो Br कंटेन -1, Mg कंटेन +2, तो टोटल चार्ज इज +1। यहां पर Br इज -1। For sure this will react with this and you will get MgBr2। Now जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाला, जिस कार्बन से आपने ब्रोमीन लिखा है, वो कार्बन यहां पर अटैच होगा and you will get benzene reacts with benzene ring form CH3 CH3। ये मिस्टेक मत करना कि आप इसको यहां अटैच कर दो। जिस कार्बन से आपने हेलोजन निकाला है उस कार्बन को रिंग के ऊपर अटैच कर देना है। दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड दिस इज बेंजीन, तो नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये 12th में आएगा, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के 5 मेथड में डिस्कस कर चुका हूं, सारे के सारे मेथड आपको लर्न हो गए होंगे। 6 मेथड है। बेंजीन का फॉर्मेशन बाय फिनॉल। स्टूडेंट्स, फिनॉल का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग अटैच विथ OH। यहां पर मैंने ले लिया जिंक। सबसे पहले यहां पर लिख दीजिएगा जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है तो डेफिनेटली अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करने के लिए जिंक को एडजॉर्ब कर लेगा और जैसे एडजॉर्ब कर लेगा यू विल गेट ZnO और यहां पर आपके पास बचेगा बेंजीन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेंजीन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बेंजीन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। सो zinc dust reacts with oxygen, forms ZnO and you will get benzene. Now all 6 reactions clear। अभी मैं 1 बाय करके यहां पर फ्लो चार्ट बना रहा हूं। प्लीज ये फ्लो चार्ट आप लोग भी अपनी नोटबुक पे बना लीजिएगा। पेज नंबर 6 8 के ऊपर थोड़ा जगह है, वहां पर बना लीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिया था 3 मोल्स ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट्स जल्दी बोलो, मैंने कंडीशन लिया था रेड हॉट आयन ट्यूब। रेड हॉट आयन ट्यूब आपके पास बना था बेंजीन। ये सारी रिएक्शन का मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। दूसरा लिया था मैंने सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम NaOH CaO का मिक्सचर, यू विल गेट बेंजीन प्लस Na2CO3। थर्ड मेथड मैंने डिस्कस किया था, इफ यू हैव aryl halide react with nascent hydrogen in the presence of NiAl alloy, you will get benzene। याद रखिएगा वर्ड्स-फिटिक रिएक्शन से you can't form benzene। Now benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid react with steam on high temperature, you will get benzene। And one more reaction is you have phenol
in the presence of students zinc, you will get benzene plus Zn. Now प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो आपको नहीं समझ रहा. दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शंस. प्लीज स्टूडेंट्स फटाफट वीडियो को पॉज करके प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन अभी खत्म कर दो. प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन अभी की अभी खत्म कर दो. दिस इज वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन. दिस इज वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन. फटाफट बुक में डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में आपको सारे के सारे मेथड आना चाहिए. वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट वहां से अपन बेंजीन नहीं बना पा रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड बना पा रहे थे. नाउ पेज नंबर 9 पे नीचे दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी नहीं पूछते, सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं है. फोर्थ प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन. फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ प्रॉपर्टी में दिया है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास. लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो आप क्या करोगे? सपोज आई विल गिव यू वन एग्जांपल. मैंने लिया जाइलीन, एक CH3 यहां पर CH3, इसको बोलते हैं अपन ऑर्थोजाइलीन. 2CH3 ऑन बेंजीन रिंग नोन एज जाइलीन. दूसरा लिया यहां पर CH3, दिस इज मेटाजाइलीन. और यहां पर ले लिया मैंने पैराजाइलीन. सबसे पहले इन तीनों में मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो हाउ विल यू डिसाइड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो सबसे पहले इन तीनों में अगर देखा जाए तो विच इज मोस्ट सिमेट्रिकल एरोमेटिक कंपाउंड? दिस इज मोस्ट सिमेट्रिकल. सो पैराजाइलिन का मेल्टिंग पॉइंट इज सबसे ज्यादा, देन मेटा एंड देन ऑर्थो. आपको सर ने डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला दिया होगा विद द एंगल ऑफ थीटा. वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप सीधा ट्रेंड रन कर लीजिएगा, PMO. एक और इंफॉर्मेशन मैं यहां पर आपको दे देता हूं. फिजिकल प्रॉपर्टी में मेंशन करना आप लोग. आपका जो बेंजीन रिंग है उसमें हाउ मेनी पाई बोन्स एंड हाउ मेनी सिग्मा बोन्स? स्ट्रक्चर ऐसे ले लेता हूं. हाउ मेनी सिग्मा, हाउ मेनी पाई बोन्स. मैं बोन्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं. मैं बोन्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं. प्लीज क्वेश्चन से बचिएगा. मैं बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं. दिस इज सिग्मा पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा. अगर आप काउंट करोगे तो बेंजीन रिंग में सिग्मा बॉन्ड इज 12 और पाई बॉन्ड इज 1 2 3. बहुत बार एक क्वेश्चन में आता है और एक बार JEE में भी एक क्वेश्चन आ गया था. इन द बेंजीन रिंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड? तो प्लीज मेंशन कर लीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में बेंजीन कंटेन 12 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड्स. और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बेंजीन कंटेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज 24 बिकॉज वन बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6. प्लीज क्वेश्चन से बच जाना. बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स, वन बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो बेंजीन कंटेन 12 sigma bond as well as 3 pi bonds. Point number 5 physical property में दिया है benzene are toxic in nature and carcinogenic. कैंसर जनरेट सब्सटेंस होते हैं. कैंसर जनरेट सब्सटेंस होते हैं. नाउ पेज नंबर 9 पे अपन ने सारे प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन डिस्कस किया. नाउ
पेज नंबर 10 पे मैं डिस्कस कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पहला दिया है, डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन इन CCl4। वेरी गुड, डज नॉट डिकलराइज। स्टूडेंट पहले ही पेज में मैंने इसका रीजन दिया था, why benzene do not undergo with oxidizing and reducing agent because of resonance। Br2CCl4, अगर मैं किसी भी अल्कीन के साथ Br2CCl4 का रिएक्शन कराऊंगा तो आप पाई बॉन्ड ब्रेक करके ये वाला कंपाउंड बनाते थे, सबको याद होगा शायद से। लेकिन अगर मैं किसी भी बेंजीन के साथ अगर मैं Br2CCl4 का रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन डज नॉट प्ले बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज, एज वेल एज अल्केलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डज नॉट रिएक्ट, एज वेल एज K2Cr2O7 डज नॉट रिएक्ट। सो प्लीज इस टोटल का रीजन आपको नीचे भी दिया है, द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज ड्यू टू रेजोनेंस, एंड ड्यू टू रेजोनेंस benzene does not react with Br2CCl4 as well as alkaline KMnO4. That's why benzene does not decolorize with two reactants. आपको benzene plus Br2CCl4 पेज नंबर 10 के ऊपर दिया होगा, एंड alkaline KMnO4 पेज नंबर 10 पे आप देखिएगा, दोनों के साथ ही रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। नाउ बॉक्स के आपको बेंजीन Br2CCl4 अल्कलाइन KMnO4 के जस्ट नीचे लिख के दिया है, द 6 pi electrons in benzene are delocalized making pi clouds resonance above and below the plane of the ring. The 6 pi electrons are thus available in a reagent seeking electrons. Thus benzene can serve as source of electrons for electrophilic reagent. This is also very important. Benzene acts as a nucleophile. प्लीज मेंशन कर देना, benzene act as a nucleophile because every time resonance is there, and when resonance is there, so every time benzene ring is a source of electrons, and whenever any species which is having a source of electrons known as nucleophile, that's why benzene undergo in electrophilic substitution reaction, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आज के बाद में इसका रीजन मुझसे कोई नहीं पूछेगा, मैंने रीजन बता दिया है। बेंजीन इज ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बिकॉज एवरी टाइम इज रेजोनेंस इज देयर, एंड व्हेनेवर रेजोनेंस टेक्स प्लेस, बेंजीन में बिलो अबे दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एवरी टाइम होंगे। दैट्स व्हाई बेंजीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। राठी सर ने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। न्यूक्लियोफाइल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोफाइल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। एवरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज न्यूक्लियोफाइल, एवरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको क्लियर कर दिया व्हाई बेंजीन अंडरगो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन, बेंजीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल पे इजीली अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। नाउ बेंजीन कुछ केसेस में एडिशन रिएक्शन भी देगा जब आप एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन डालोगे। सो नाउ पेज नंबर 10 पे मैं डिस्कस कर रहा हूं सम एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ आई विल डिस्कस एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, I request all of the students, please
एडिशन रिएक्शन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। इसका हर एक पॉइंट, हर एक रिएक्शन, हर एक टेम्परेचर, हर एक रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन, प्लीज थोड़ा सा इस रिएक्शन में करेक्शन है। यू हैव बेंजीन, आपको बुक में 6Cl2 दिया है, वहां पर आप लेंगे 3Cl2, प्लीज मेक दिस करेक्शन। एरो पे भी आपको रोंग दिया है, कुछ एनहाइड्रस AlCl3 दिया है, उसको हटा के वहां पर लिखना है यूवी लाइट, यूवी लाइट। आपको इसका प्रोडक्ट भी रोंग दिया है, क्योंकि जब मैं 6 क्लोरीन एटम को इधर ऐड करूंगा तो डेफिनेटली ऑल द डबल बॉन्ड्स आर रिड्यूस्ड एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। सबके सब कार्बन पे एक एक Cl आ जाएगा, सबके सब कार्बन पे एक एक Cl आ जाएगा। नाउ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, दिस फॉर्मूला इज C6H6। Now the formula of this compound is C6H6Cl6, C6H6Cl6। इसको लर्न कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक टाइप का इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स, ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BHC, BHC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फर्स्ट रिएक्शन में प्लीज मेक दिस करेक्शन, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज मेक दिस करेक्शन। ऑल द डबल बॉन्ड इज रिड्यूस्ड बिकॉज व्हेन यू अटैच द क्लोरीन एटम, कार्बन का वैलेंसी 5 होगा, उसको डबल बॉन्ड को हटा के दोनों साइड में एक एक Cl डालती है। दिस इज सिंपल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में इस कंपाउंड को वैसे अपन बोलते हैं हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, बेंजीन हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी इसको बोला जाता है। प्लीज दोनों ही नेम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ये एक टाइप का इंसेक्टिसाइड्स है, इसका शॉर्ट फॉर्म है BHC, इसका शॉर्ट फॉर्म है BHC। ये 8 आइसोमेरिक फॉर्म बनाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज गैमेक्सेन और लिंडेन। ये सब इंपॉर्टेंट करना है, लिंडेन एंड गैमेक्सेन, गैमेक्सेन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैमेक्सेन एज वेल एज लिंडेन। आई थिंक स्टूडेंट्स बेंजीन का फर्स्ट एडिशन रिएक्शन इज क्लियर, एडिशन विथ क्लोरीन। स्टूडेंट फटाक से वीडियो को पॉज करके इसको रिवाइज करो। बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विथ Cl2, 3 मोल ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यूवी लाइट। मेंशन दिस, वहां से एनहाइड्रस Cl2 हटा देना, एनहाइड्रस AlCl3 हटा देना, 6Cl2 की जगह 3Cl2। प्लीज मेक दिस करेक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ BHC, आपका आंसर होगा C6H6Cl6। दिस इज ऑल्सो नोन एज गैमेक्सेन और लिंडेन। नाउ सेकेंड एडिशन रिएक्शन है बेंजीन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वेरी सिंपल, आपके पास बेंजीन है, इसमें आपने ऐड किए 3 मोल्स ऑफ H2। अब स्टूडेंट बोलेगा सर आप 3 मोल्स ही क्यों ले रहे हो, बिकॉज 3 डबल बॉन्ड्स है। 6 हाइड्रोजन डाल देंगे, एक यहां पर, 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 एक यहां पर। फॉर्मूला है C6H6। अगर 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करूंगा तो 6 हाइड्रोजन एटम ऐड किए। नाउ यू हैव C6H12 जिसको अपन बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला इज दिस। अब मुझे बताओ विच इज हाइड्रोजनेटिंग एजेंट, निकल। ये सब तो पढ़ाया हुआ है, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम इज हाइड्रोजनेटिंग एजेंट। टेम्परेचर इज 400 से आसपास का टेम्परेचर था ना। ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन,
This is a very important. Ozonolysis of benzene. You have a benzene ring which is contain 3 double bonds. मैंने आपको ओजोनोलिसिस अल्कीन और अल्काइन दोनों में सिखाया था. अल्कीन में ओजोनोलिसिस में सिखाया था यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओजोन फॉर्मूला इज O3. पहले मैंने बताया था पाई बॉन्ड कट करके यहां पर 3 ऑक्सीजन को ऐड करना. देन यू कट इन वाई शेप और यहां से बना था HCHO और इस O को लेने के लिए मैंने यहां पर यूज किया था जिंक. आई थिंक आपको याद होगा. तो यू टेल मी कि जब आपके पास एक डबल बॉन्ड होता है तो आप एक मोल ओजोन यूज करते हो, लेकिन अगर आपके पास 3 डबल बॉन्ड होता है, अगर आपके पास 3 डबल बॉन्ड होता है तो आप 3 मोल्स ऑफ ओजोन यूज करोगे. यू हैव 3O3. फटाफट सब स्टूडेंट को घर पे भी ये करके लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ऐड करो इस पे. यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग. अगर आप इसका एक डबल बॉन्ड यहां से कट करते हो तो 1 ऑक्सीजन ऊपर, 2 यहां पर डबल बॉन्ड कट किया तो 1 ऑक्सीजन यहां पर, 2 यहां पर. ऐसे यहां पर कट किया तो 1 ऑक्सीजन यहां पर और 2 यहां पर. आपको बुक में जिंक और H2O सेकंड स्टेप में दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप कट करो इन द वाई शेप. आपने इसको वाई शेप में कट कर, आपने इसको वाई शेप में कट कर दिया. अब देखो आपके पास ये था CHO सिंगल बॉन्ड CH. ऐसे कितने पेयर बन गए? CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH. तो आपका आंसर होगा 3 मोल्स ऑफ CHO. और यहां पर जो 3 ऑक्सीजन एटम निकला है, दिस विल रिएक्ट विद H2O, फॉर्म 3 मोल्स ऑफ H2O. अल्कीन में जिंक एडजॉर्ब कर रहा था, यहां पर H2O एडजॉर्ब कर रहा है. आई विल अगेन एक्सप्लेन यू ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन. यू हैव बेंजीन का फॉर्मूला लाइक दिस. ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, you have CH double bond CH single bond CH double bond CH single bond CH double bond CH single. You have 3 double bond in this structure, so you will take 3 moles of ozone. एंड मैंने आपको बताया था जब आप ओजोन का एडिशन करते हैं तो पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं. तो यहां पर बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH, 1 ऑक्सीजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन नीचे. Then CH single bond CH 1 oxygen over here, 2 oxygen over here. यहां पर है आपके पास सिंगल बॉन्ड CH single bond 1 oxygen, there is 2 oxygen and CH and then single. Then you cut in Y shape. स्टूडेंट्स घर पे प्रैक्टिस करना ही. देन यू कट इन वाई शेप. आप देखो आपके पास क्या बना, CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO. सो नाउ आपके पास आंसर आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ CHO एंड 3 मोल्स ऑफ H2O. नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक आपको इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. CHO को अपन ने बोला था ग्लाइओक्सिल. एक और चीज मेंशन कर दो, जब वहां पर जिंक नहीं होगा, व्हेनेवर जिंक इज नॉट देयर, तो वहां पर प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सैलिक एसिड. 3 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, प्लीज मेंशन इट. व्हेनेवर जिंक इज नॉट गिवन द रिएक्शन, द प्रोडक्ट इज ऑक्सैलिc acid. Now come on. Page number 10. Page number 10 is also finished. Page number 11. Page number 11 पे we will discuss combustion of benzene. Combustion तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है. बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6
कंबशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जितने कार्बन है उतना आप CO2 बना दो, एंड जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ मोल्स वाटर बना दो। तो 6 हाइड्रोजन इज हियर, तो यू विल हैव 3 मोल्स ऑफ H2। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर दो। यू विल हैव 12 ऑक्सीजन एटम एंड 3 15, देयर इज 2, तो यहां पर आ जाएगा 15/2, या अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2C6H6 प्लस 15O2, यू विल हैव 12 CO2 प्लस 6 H2O। तो कंबशन इज वेरी सिंपल, कंबशन इज वेरी सिंपल। पेज नंबर 11 में कंबशन के जस्ट नीचे आपको दिया है बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं जिसमें आपने एडिशन रिएक्शन डिस्कस किया। नाउ यू हैव बेंजीन। सबसे पहले स्टूडेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। बेंजीन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने यूज किया 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन in the presence of red hot iron tube. Temperature is 873 Kelvin. फर्स्ट मेथड ये था। सेकेंड मेथड में आपने लिया सोडियम बेंजोएट, और यहां पर लिया आपने सोडा लाइम मिक्सचर NaOH प्लस CO का मिक्सचर, आपने बेंजीन फॉर्म किया। थर्ड में आपने लिया अराइल हैलाइड और उसका आपने कराया नेसेंट हाइड्रोजन के साथ NiAl एलॉय। फिर आपने लिया यहां पर फिनॉल। फिनॉल को रिडक्शन के लिए आपने यूज किया जिंक। रिएक्शन नंबर 4 आपने फिफ्थ मेथड में लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहां पर आपने लिया था स्टीम। स्टीम टेम्परेचर कुछ 400 केल्विन के आसपास था। क्यूमीन और इथाइल बेंजीन के लिए आपने दो अलग रिएक्शन डिस्कस किए थे, तो वर्ड्सफिटिक रिएक्शन, और एक आपने डिस्कस किया था ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। नाउ बेंजीन के एडिशन रिएक्शन, बेंजीन गिव यू 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बहुत ही कम केस में देगा, और एडिशन के लिए पहले आपने लिया था 3 मोल्स ऑफ Cl2, यहां बना था सबके सब डबल बॉन्ड निकल के यहां पर Cl आ गया था। इसका शॉर्ट फॉर्म आपने बोला BHC, ये टाइप का इंसेक्टिसाइड्स है। दिस इज ऑल्सो नोन एज गैमेक्सेन और लिंडेन। कंडीशन लिया था आपने यूवी लाइट। यूवी लाइट दूसरा रिएक्शन आपने डिस्कस किया 3H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, बना था साइक्लोहेक्सेन। थर्ड रिएक्शन में आपने लिया था 3 मोल्स ऑफ ओजोन विद जिंक एंड वाटर, आपने बनाया था 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सेल। और अगर आपने लेंगे यहां पर 3 मोल्स ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यू विल हैव 3 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। स्टूडेंट आज की सारी रिएक्शन आपके सामने है। पेज नंबर 1 अच्छे से डिस्कस हो गया। पेज नंबर 2 बेंजीन और नॉन बेंजीनॉइड। पेज नंबर 2 पे मैंने एलिफेटिक एरोमेटिक डिस्कस किया। IUPAC मैंने आपको पढ़ा ही दिया। फिर भी अगर IUPAC में कोई भी डाउट आता है तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछोगे, मुझसे आप क्वेश्चन पूछोगे। हकल्स रूल ऑलरेडी क्लियर है। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आपको सारी की सारी रिएक्शंस लिखनी है। वीडियो को पॉज करके यू राइट ऑल द रिएक्शंस, यू राइट ऑल द रिएक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेंजीन को सबसे पहले किसने देखा? कैक्यूल। कैक्यूल क्या बताने में एक्सप्लेन रहा? अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। कैक्यूल ने बताया एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, दैट्स व्हाई sp2। बेंजीन में बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ का नंबर्स, ये सब के सब आपको लर्न करना है। ये एडिशन रिएक्शन, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स. प्लीज यू रिवाइज ऑल द रिएक्शन एंड ब्लू बुक में मैं आपको नंबर्स लिख करके दूंगा. ब्लू बुक में आपको 1 से लेकर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन 73 तक क्वेश्चन खत्म करके रखने हैं. जूम लेक्चर में आपको ये सब बताना है. स्टूडेंट्स जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज आप मैसेज डालोगे, पर्सनली मुझे एसएमएस कर दो, सर ये रिएक्शन नहीं समझा. बट ऑल द रिएक्शंस आर वेरी सिंपल. ऑल द रिएक्शंस आर वेरी सिंपल. एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे. बेंजीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. व्हाई? बिकॉज बेंजीन इज द रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बेंजीन रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों है? क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है. ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बेंजीन के बिलो और अपर दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन्स एवरी टाइम रहते हैं. दैट्स व्हाई बेंजीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. सो बेंजीन पे रिएक्शन कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल. एक बात ध्यान में रखना, अगर स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है तो उस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और अगर स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल. एक और चीज जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल को अपने को रिप्रेजेंट करना है E+ से, और न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करना है Nu- से. Nu-. बेंजीन ऑलवेज undergo an electrophilic substitution reaction preferably, but benzene under certain condition gives addition reaction also. एक और क्वेश्चन, बेंजीन में पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स का रेशियो क्या होता है? तो आपको बॉन्ड्स बता दिया. बेंजीन कंटेन 12 सिग्मा and 3 pi bonds, but electrons is double of bonds because one bond contain 2 electrons. Now पेज नंबर 11 में सब्स्टिट्यूशन से पहले आपको सब कुछ रिवाइज करना है. इन द सेकेंड क्लिप मैं एरोमेटिक के ब्लू बुक में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं. प्लीज उस क्वेश्चन को अच्छे से कुछ स्टूडेंट सेकेंड क्लिप थर्ड क्लिप को देखते ही नहीं, तो प्लीज उन सब क्लिप को देखो, अच्छे से समझेगा चैप्टर. दिस इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर.